कधी एखाद वेळेस Okay, sir. Very good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. So I welcome you on behalf of the Department of Mechanical Engineering of Tulsiramji Gaikwad Patel College of Engineering and Technology for today's GATE classes sponsored by AICT under Prerna scheme. So today's topic of discussion, today's lecture is on balancing of rotating and reciprocating masses and the gyroscope. So over to you, sir. We can proceed with today's session. Okay, thank you very much, sir. Good afternoon, all of you. Today we are start. Today, just take a minute. Just a minute, sir, please. Sir, it is visible. Hello. Yes, Hi, sir. sir. It is Okay, visible. okay. Thank you very much, sir. Good afternoon, all of you. Today we are lecture. Today, this presentations balancing of reciprocating and rotating masses and gyroscopics. I will this presentation presentation divide into the separate parts. Balancing of rotating masses separate as well as reciprocating and gyroscopic. Okay. So today miss these three parts divided these presentations. Today we are see balancing of reciprocating is different, reciprocating rotating is different, and gyroscopic is different. Okay, so day to day life we are see the different type of mechanisms. That time what happens, the mechanism on any machine element consists of the number of parts. Okay, any machines or any two wheeler, four wheeler, or any machines. That time what happens, these machines also consist of some mechanical parts, means due to presence of their particular different rotation, some different rotary motion take place, reciprocating motion take place. For example, just we are give the example of four wheeler. That time what happens, there also be some different rotation take place, some rotary motion into the reciprocating also, and propellers. But means these element are any you get them, means just you consider the any machine elements or any machine example are two wheeler, four wheeler, or a ship or aeroplane. Okay, that times these machines are these vehicles are consist of the different type of number of mechanical elements. With help of the different type of mechanical element machines parts we are manufacture it. Okay, that time what happens, we are with help of the just we are taking the example of four wheeler. Okay, four wheeler consists of the number of mechanical element, their number of different type of rotating parts. Okay, that time what happens, means which type of effect take place due to the different reciprocating masses and rotary masses, or while we are taking the turn, that time which type of effect take place, and why we need require of this each and every element. It may be reciprocating or rotary masses, उसको अपने को बैलेंस क्यों करना है, वाई दिस मीन्स रिक्वायर में मीन्स रिक्वायर टेक प्लेस. ओके, उसके इफेक्ट क्या है, वो उस पे उसके इफेक्ट क्या है, और उसके वो मशीनरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पे, दिस ऑल दिस थिंग्स वी आर कवर हियर. ओके, sorry, balancing balancing nothing but balancing of uh, rotating masses. Okay, it may be balancing of, it may be static or statics or dynamic balancing. They are divided generally into the two classes. It may be static or dynamic. Balancing of a single rotating masses by balancing masses in a same plane or a different place means जो भी तुमको बैलेंसिंग करना है, डेफिनेटली दिस बैलेंसिंग इट में बी सिंगल रोटिंग मासेस हो सकती है, और मेनी, यानी कि इट में बी सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन में भी वो डिफरेंट मासेस एक्ट हो सकते हैं, एज वेल एज बैलेंसिंग अप सेवरल रोटेटिंग मासेस बाय बैलेंसिंग इन सेम प्लेन ऑल डिफरेंट प्लेन्स मीन्स वो जो भी बैलेंसिंग करना है, इट में बी सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन वो रोटेट करते रहेंगे. बरोबर है. इनके साथ फोर व्हीलर का अगर से एग्जांपल अपन ने ले लिए, तो दैट टाइम डेफिनेटली देयर आल्सो बी
एक्टिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस, ओके। तो वो भी वो एक एलिमेंट वन, इट इज नॉट फिक्स ऑन वन प्लेन, ओके। सम कुछ समय में वो सेम प्लेन में भी रहते हैं और सम प्लेन में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऊपर वो लगा रहते हैं। दिस ऑल कम अंडर द स्टैटिक एंड डायनामिक्स, ये सभी को अपने को विथ हेल्प ऑफ द एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकली मेथड उसको पर्टिकुलर जो भी बैलेंस करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट मैसेज जो अनबैलेंस है, जो अनबैलेंस होने के वजह से जो प्रॉब्लम्स और यूर व्हीकल्स, जो तुम्हारे व्हीकल में प्रॉब्लम्स आते हैं उसको अपने को एलिमिनेट और उसको मिनिमाइज करना है, एज पर एज पॉसिबल उसको मिनिमाइज करना है, ताकि जो बैलेंसिंग से होने वाले इफेक्ट हो उसको अपन रिड्यूस कर सके, एलिमिनेशन कर सके, ओके। दिस नथिंग बट देयर आर टू टाइप ऑफ बैलेंसिंग, इट मे बी स्टैटिक और डायनामिक बैलेंसिंग, ओके। आफ्टर दैट व्हाट इज बैलेंसिंग, यानी बैलेंसिंग में अपन करते क्या है, ओके। वी आर सी offer of the unbalanced force produced in a rotary and a reciprocating machine due to the inertia force associated with the moving masses। यानी कि क्या हो रहा है, जो अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा, इट मे बी रोटेटिंग अन रोटेटिंग, इन केस ऑफ द वी आर कंसिडरिंग फोर व्हीलर, that time what happens, our engines crank is rotating at the same time. When your crank is rotating in the 360 degree, it may be rotating in the clockwise direction or anti-clockwise direction, means depend upon requirements, but that time what happens, it may be ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखो तुम्हारा इंजन विथ रिस्पेक्ट टू क्रैंक क्लॉकवाइज से अगर से रोटेट हो रहा है, मींस रोटरी मोशन इज कन्वर्ट इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ओके। लेकिन वहां पे क्या हो रहा, वन इंजन मींस क्रैंक तुम्हारा कंटिन्यू 360 में डिग्री में क्या हो रही, मूव हो रही, बट व्हाट हैपेंस एट द सेम टाइम यूर क्रैंक एंड कनेक्टेड रॉड, जो पिस्टन जो कनेक्ट रहता है, दिस नथिंग बट इज रेसिप्रोकेटिंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। same thing, not only engine but also we are see the different different machine purpose also be, some machinery purpose also be, our we are using this such type of balancing, means due to the presence of different different element of the machine parts, okay, crank connecting rod जो भी है, okay, उसके मुताबिक जो भी due to presence of inertia उसके जो पर्टिकुलर मास है, मास के वजह से क्या हो रहा है, मूविंग मास की वजह से वो अनबैलेंस होते रहता है, ओके। तो उसको ही अपने को बैलेंस करना है। सेकंड पॉइंट इज balance is the process of designing and modification machinery so that unbalance is reduced as per acceptable level and possible to eliminated entity, okay। मीन्स जो भी वो जो मीन्स रोटरी मोशन, जो अपने इंजन का एग्जांपल देखे वहां पे क्या हो रहा था, रोटरी मोशन इनटू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और एट द सेम टाइम, मीन्स इंजन तो डेफिनेटली तुम्हारे व्हीकल में रोटरी इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन में रन हो रही है, एट सेम टाइम तुम्हारी अगर से व्हीकल्स रनिंग कंडीशन में तुम्हारे जो भी फोर व्हीलर के टायर्स वगैरह इट में भी रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन्स उसके ऊपर आने वाले जो भी मोशंस है, जो अपन ने ऑलरेडी देखी इंजन के रोटर इंटू रेसिप्रोकेटिंग में, एट अ सेम टाइम यू आर व्हीकल रन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हेन वी टेकिंग द टर्म्स, दैट टाइम व्हाट हैपेंस, इट इज सम, इट मे सम अनबैलेंस टेक प्लेस, ओके। तो वो अनबैलेंस को भी अपने को दिस आर कम अंडर द गायरोस्कोपिक इफेक्ट, वेयर सी द after that, okay, means balancing is a process of designing and modification machinery so that unbalance is reduced as far as possible, जितना भी unbalance अपने को reduce करते आना चाहिए उतना करने के अपन डेफिनेटली विद हेल्प ऑफ द एनालिटिकल एंड ग्राफिकली अपन वहां पे देखेंगे मासेस लगा के कैसे क्या अपन उसको बैलेंस करते हैं, यानी व्हीकल को, मींस एज पर एज पॉसिबल, डेफिनेटली सपोज योर व्हीकल इज मच मोर मींस बैलेंस नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे अगर से तुम्हारी व्हीकल बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली दैट टाइम व्हाट दे आर produce some much more problems, okay, related to vibration or it is or any अगर से stationary machinery अगर से है, तो that time what happens, it is not working in the good manners, okay, they are producing much more high vibration as well as what happens due to the presence of जो presence of unbalance की वजह से होने की वजह से क्या होगा, वहां पे जो भी वहां पे प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, दैट टाइम्स वहां पे अगर से ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहा तो दे आर फेसिंग ऑफ द एक्सर्शन, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मच मोर वाइब्रेशन और दिस, ये जो वाइब्रेशन का फोनोमेना हैपन होता है विद रिस्पेक्ट टू योर अनबैलेंसिंग्स के होने के वजह से, ओके, दिस नथिंग बट बैलेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
a particle or masses moving in the circular path. Okay, agar se same masses moving in a circular path experience at the centripetal acceleration and the force is required to produce it. Okay, some masses is moving in the circular path with respect to particular theta, theta 1, theta 2, theta 3, so and so. Okay, इस जैसा हमने मैंने ऑलरेडी गिव द एग्जांपल ऑफ द इंजन का क्या हो रहा है, जो तुम्हारी क्रैंक 360 डिग्री में रेसिप्रोकेट हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वो जो क्रैंक है उसका भी सम कंसिस्ट ऑफ दिस क्रैंक आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम मासेस. ओके, एट द सेम टाइम व्हाट हैपन, जो तुम्हारा कनेक्टिंग रॉड है वो जो इंजन के अंदर रेसिप्रोकेटिंग अप एंड डाउन और हो रहा है, दिस नथिंग बट इसकी वजह से centripetal's acceleration and the force is required to produce it. Okay, then next point is that an equal and opposite force acting radially toward act on the axis of a rotation and is known as the centrifugal force. जो उसके वजह से जो centrifugal force develop हो रहा है उसको अपन due to the presence of rotation, this nothing but this is called as the, or this is known as the centrifugal force. Okay, next point is that it is the disturbance force on a axis rotations. Okay, this nothing but your disturbing force. Disturbing force are definitely when your vehicle is running on the particular forward direction or backward direction in the particular manner, that time of this centrifugal force is nothing but this is the disturbance force. Okay, the magnitude of the which is considered as a direction change or rotation of the mass. means देखो जो भी जो डिस्टर्बेंस एक्सेस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक्ट हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए वी आर नॉट अप्लाइंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द मास. ओके, जो भी उसको अनबैलेंसिंग अगर से उसको बैलेंस करना है, दैट टाइम जो अनबैलेंस प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस एंड रोटेशन, फॉर दैट पर्पस वी आर रीडिंग दिस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को मास लगेगा, उसको एनी हाउ कंडीशन में उसको बैलेंस करना है ताकि होने वाले इफेक्ट, बैलेंसिंग की वजह से होने वाले इफेक्ट मिनिमाइज कर सके. ओके, नेक्स्ट इज दैट in the revolving rotors the centrifugal force remains unbalanced as long as the center of masses of a rotary lies in the axis of a shaft. Okay, तो एक्सिस ऑफ शाफ्ट के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा उसके वजह से डेफिनेटली वो जो लाइफ की उसके शाफ्ट की है वो भी कम होंगी ड्यू टू द उसके पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं होंगी. ओके, व्हेन द सेंटर ऑफ मासेस डज नॉट लाइन ऑन द एक्सिस. Okay, when the center, this is the very important point, the maximum example depend on this line also. When the center of mass does not lies on the axis or there is a eccentricity on unbalanced force it produce. मुझे what it means जो भी तुम्हारे पर्टिकुलर रोटेट के अंदर जो तुम्हारे एक्सिस के मुताबिक जो भी तुमने डिस्क जो डायग्राम में देखो एक डिस्क प्रोवाइड की है, बराबर है, दिस आल्सो बी डिस्क कंसिस्ट ऑफ द सब मासेस, उस डिस्क का पर्टिकुलर सब मासेस है. जब वो और वो जो देखो एक शाफ्ट के ऊपर ऑलरेडी वो फिक्स की है, जब वो डिस्क when we disc rotating in the clockwise direction, that time what happens, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो डिस्क घूमते रहते, दैट टाइम क्या हुआ, मींस डिस्क कंसिस्ट ऑफ सम मासेस, वो डिस्क के अंदर उसके कुछ मासेस है. डेफिनेटली जब रोटेशन व्हेन वी रोटिंग इन द हाई स्पीड, दैट टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इसेंट्रिसिटी, दो तुम्हारे साथ की एक पर्टिकुलर एक्सिस आपने जो फिक्स किए हो, बराबर है, जो शाफ्ट की एक्सिस तुमने फिक्स की हो वहां से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो अपने वो डिस्क को एंगुलर वेलोसिटी दी हो, जो मेन एक्सिस से सम उसके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्क का मास होने की वजह से और वो हाई स्पीड में एंगुलर वेलोसिटी में रन होने की वजह से व्हाट हैपेंस, वो इसेंट्रिसिटी मींस वन उसकी तो ओरिजिनल एक्सिस से थोड़ी आगे बढ़ जाती है. ओके, उसकी वजह से भी उसको भी अपने को बैलेंस करना है. दिस आल्सो भी प्रोड्यूस सम इफेक्ट. ओके, मुझे व्हेन द सेंटर ऑफ मास डज नॉट लाइज ऑन एक्सिस के ऊपर लाइज नहीं होने, मुझे ड्यू टू द जो शाफ्ट की एक्सिस है उससे सम एक्सटेंड होने के वजह से जो इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके वजह से भी अनबैलेंस फोर्स इज प्रोड्यूस. दिस आल्सो बी डेंजरस फोर्स. ओके, व्हेन वी दिस टाइप ऑफ फोर्स जनरली जो भी डिस्क रोटेशन वगैरह होते हैं और मशीनरी बिग बड़े बड़े मशीनरी में ऐसे बड़े बड़े डिस्क जो कुछ भी एलिमेंट लिफ्टिंग करने के लिए जो यूज होते हैं वो शॉफ्ट के ऊपर जो माउंट होते हैं, डेफिनेटली जब वो हाई स्पीड होने की वजह से इनबैलेंस हो जाते हैं और उसका जो मास होने की वजह से वो जो मेन एक्सिस है वहां से दे आर टेकिंग देयर सेम पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और दिस उसकी वजह से वो जो भी तुमने मासेस है वो अनबैलेंस होता है. इसको भी अपने को बैलेंस करना है. Okay, we are seeing the analytical and graphical method. Okay,
why balancing is necessary, in other word why we need require of the balancing अपने को क्यों करना है. Okay, the high speed of a engine and other machine is the common phenomena nowadays. Okay, why means this is the common phenomena nowadays because engine or any machinery or any two wheeler, four wheeler, a plane or a ships, or you take the any example, these number of these machines or this vehicle or this any vehicle consist of the number of machines devices. बरोबर है, मशीन के नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट उसके स्पीड्स होते हैं. रोटरी मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, सम टाइम इट में बी गोइंग एट द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट टाइम जो रोटेटिंग डिफरेंट अदर एलिमेंट, जो अगर से फोर व्हीलर का अगर से अपन ने एग्जांपल लिए, दैट टाइम व्हाट हैपेंस मींस फोर व्हीलर अगर से एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते रहे, दैट टाइम व्हाट हैपन इंजन आल्सो रोटेटिंग देयर इज वन स्पीड. इंजन भी अपने रोटरी मोटर, रेसिप्रोकेटिंग मोशन और अगर से तुम्हें सम व्हीकल ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, वो जो बीवल गियर वगैरह होते हैं दे आल्सो भी वो भी 90 डिग्री में होता है, वो भी आल्सो भी लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है ना. उस समय व्हाट हैपन दिस आर द कॉमन फेनोमेना. इसीलिए अपने को मींस इट इज नथिंग बट हाई स्पीड में इंजन में और एजी मशीनरी में दिस आर द कॉमन फेनोमेना टेक प्लेस. इट इज द ये कॉमन फेनोमेना होते रहता है. ओके, इट इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल दैट देयर ऑल द रोटेशन एंड रेसिप्रोकेटिंग पार्ट शुड बी कंप्लीटली बैलेंस एज फार एज पॉसिबल. जितने भी रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट अगर तुम्हारे टू व्हीलर, फोर व्हीलर और एनी सेफ और व्हीकल में है और एनी बिग मशीनरी में है, उन रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट को उसको बैलेंस करना इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सपोज यू आर नॉट बैलेंसिंग, दैट टाइम्स प्रोड्यूस मच मोर वाइब्रेशन, नॉइस, सो एंड सो, एंड योर एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन आल्सो बी लेस. मींस reciprocating, in other word reciprocating, you are see the simple mechanisms. आपने सिंपल मैकेनिज्म पढ़े होंगे. ओके ओके, सिंपल मैकेनिज्म कंसीडर क्लैंक रेसिप्रोकेटिंग और वो सिलेंडर कंटिन्यू रेसिप्रोकेट होता रहता है. ओके, मींस उसके इनर डेड सेंटर, आउटर डेड सेंटर में प्रॉपर्ली मींस टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर में तुम्हारा क्लैंक रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा. सपोज सपोज मच मोर लोड इज इंक्रीजिंग, लोड इंक्रीजिंग होने की वजह से उसके ऊपर भी जो मासेस है उसके भी इनबैलेंस होने के चांसेस है. ओके, therefore rotating as well as reciprocating part should be completely balanced as far as possible. Okay, if the if if this part is next point is that if this part is not properly balanced, dynamics force setup. Okay, जो अगर से इट में भी रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट तुमने प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं किए, ओके, दैट टाइम व्हाट हैपेंस डायनामिक फोर्स. और डायनामिक फोर्स इतना डेंजरस होता है मुझे जो भी रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मास को अनबैलेंस होने के बैलेंस अगर से प्रॉपर्ली नहीं है, दैट टाइम डायनामिक फोर्स क्रिएट होता है. और डायनामिक फोर्स इज वेरी डेंजरस एंड इट इज क्रिएट मच मोर वाइब्रेशन, नॉइस, ये सभी चीजें उसकी वजह डायनामिक फोर्स की वजह से होते रहती है. और समटाइम्स यू आर in case of four wheelers or a place that is decreasing your efficiency of engine of any vehicle की engine और any machine की efficiency पे वो directly impact करता है. Okay, next point is this, these forces not only increase the load on bearings. Okay, not only increase load on bearings and stresses and various member stresses in the various member, but also produce the unpleasant and even dangerous vibration. Okay, वो जो dynamics force है, this also be created much more वो load impact under bearing. definitely bearing के ऊपर उसके ऊपर load आएगा, तो क्योंकि bearing is nothing but it also be rotating parts उसके, क्योंकि different type of bearing जो तुमने देखी है उसके ऊपर अगर से bearing थोड़ी भी डैमेज होंगे तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ मैक्सिमम तुम्हारे जो भी व्हीकल की स्पीड है बेरिंग के ऊपर से माउंट रहती है. और बेरिंग अगर से डैमेज हो गया तो डेफिनेटली उसके ऊपर तुम्हारे तुम्हारे व्हीकल के ऊपर उसकी स्पीड के ऊपर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा. ओके, और स्ट्रेसेस वेरियस जो बेरिंग के ऊपर आने वाले स्ट्रेसेस है और इन्हीं अदर मेंबर के ऊपर भी वेरियस स्ट्रेसेस है, ये वो प्रोड्यूस ये डायनामिक फोर्स क्रिएट करता रहता है. देयरफॉर वी नीड रिक्वायर द ईच एंड एवरी मेंबर मस्ट बी प्रॉपर्ली बैलेंस. ओके, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेनेवर सर्टेन मास इज अटैच टू द रोटिंग शाफ्ट. ओके, whenever a certain mass is rotating a shaft, it exerts some centrifugal force whose effect it bend the shaft and provide vibration. It is okay.
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से व्हाट हैपन टेक प्लेस ड्यू टू तुम्हारा जो शाफ्ट है जिसके ऊपर तुम्हारे बेरिंग और अदर एलिमेंट्स इन केस ऑफ द फोर व्हीलर इंजन की अगर से बात देखिए वहां पे बेरिंग वगैरह लगा रहते बराबर है। तो जो तुम्हारा शाफ्ट है जिसके ऊपर रोटेटिंग एलिमेंट अपन वो फिक्स करते हैं, दिस आल्सो बी टेकिंग मींस उसके ऊपर भी उसके जो इफेक्ट आ सकते हैं सम टाइम दिस सॉफ्ट आल्सो भी बेंडिंग के चांसेस, वो सॉफ्ट के बेंड होने के चांसेस ही मच मोर होती है। इसके पहले अपन जो डिस्क के अंदर देखे थे, डिस्क के अंदर बैठ अपन जो शाफ्ट के पोजीशन से वो डिस्क प्रॉपरली जो शाफ्ट के ऊपर हमने डिस्क फिक्स किया था और उसके ऊपर को पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी उसको दिए थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था वो ओन एक्सिस से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम डिस्क के मास के वजह से वो अपने ओन एक्सिस से थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी विथ रिस्पेक्ट टू सम इसेंट्रिसिटी। ओके, डेफिनेटली उस समय भी तुम्हारा शाफ्ट का भी उसके ऊपर बेंड आने के चांसेस है। सेम थिंग हियर आल्सो भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स those effect on the bend of shaft and produce a vibration। डेफिनेटली अगर से शाफ्ट बेंड हो गया तो डेफिनेटली वो प्रोड्यूस वाइब्रेशन होंगे और तुम्हारी जो इफिशियंसी इन केस ऑफ फोर व्हीलर टू व्हीलर और एनी मशीनरी दैट टाइम तुम्हारी इफिशियंसी की वजह से उसके ऊपर वाइब्रेशन आएगा सपोज उस मशीन में, सपोज यू आर कंसीडर टेकिंग द एनी एग्जांपल आप उस मशीन पे जहाँ पे ये जो अरेंजमेंट लगाया है शाफ्ट वगैरह का अरेंजमेंट लगाया और वहाँ पे ह्यूमन बीइंग सपोज वर्क कर रहा है, दैट टाइम्स ईट फेसिंग द मच मोर एक्सर्शन, उसको वो प्रॉपर्ली वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए therefore we require the each and every members of the rotating or reciprocating member of any machine elements, we must balance it properly। Okay, and next is nothing but next point is that in order to prevent the effect of centrifugal force, another mass is attached to the opposite side of a shaft at such a पोजीशन सो टू बैलेंस अप इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन फर्स्ट मास। ओके, तो इसको अपन ठीक है ना, बैलेंसिंग जो भी तुमने बैलेंसिंग अगर से करना रहता हूँ तो बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायनामिक फोर्स को बैलेंस करना है, कैसे करना है। ओके, दिस आल्सो भी अगर से तुम्हारे पास सपोज डेफिनेटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मासेट अगर से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर से वहां पे आ रहे हैं तो उसका एलिमेंट भी तुमको करना है ना। ओके, जो रोटेटिंग पार्ट के वजह से वहां पे आने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे क्रिएट हो रहे, डायनामिक फोर्स क्रिएट हो गए, नंबर ऑफ सॉफ्ट के ऊपर स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे, तो उसको जो भी ये अनवांटेड एक्सेस जो फोर्सेस है उसको तो ये नहीं हो कंडीशन अपने को एलिमिनेट करना है। तो उसको कैसे क्या उस एलिमिनेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए और तुमको प्रॉपर वो जो डिस्क है जो भी इंजन पार्ट है उसको प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए, फॉर दैट पर्पस वी आर बैलेंसिंग करने के लिए उसी डायरेक्शन के उस सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन के अपोजिट में अपने को कुछ सभी मासेस लगाना पड़ के उसको बैलेंस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज डन इन सच वे दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ मासेस आर मेड इन इक्वल एंड अपोजिट। ओके, जो सेम मासेस अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत मासेस सेम बना के उसको अपोजिट डायरेक्शन जो भी वहां पे इन बैलेंसिंग हो रहा उसके अपने को अपोजिट डायरेक्शन में लगा के उसको एनी हाउ कंडीशन में इट में बी रोटेटिंग मास और रेसिप्रोकेटिंग मास को अपन बैलेंसिंग एनी हाउ कंडीशन में करना है। मींस जो भी तुम नेक्स्ट न्यू वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बैलेंस करने के लिए जो भी तुम फोर्स वहां पे नया मास एक्ट कर रहे हो वो अपोजिट डायरेक्शन में अपने को लगाना पड़ता है। ओके, दिस नथिंग बट बैलेंसिंग अप रोटेटिंग मास मीन बैलेंसिंग हाउ टू बैलेंस अप रोटेटिंग मास, उसकी डेफिनेशन अगर से अपन इन अदर वर्ड वी कैन से तो the process of providing of the second masses in order to contract to the effect of the centrifugal force of the first mass is called as the balancing of rotating mass। उसको मास को जो भी अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए जो अनदर फर्स्ट मासेज यूज कर रहे हैं, दिस नथिंग बट यू आर उसको क्या बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। मींस जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंसिंग मास लगाना है उसको पर्टिकुलर जो भी डिस्क है और इंजन कंपोनेंट है उसको प्रॉपरली अगर से तुमको उसको बैलेंस करना है, दैट टाइम यू मस्ट रिक्वायर अनदर मासेस के जो फर्स्ट मास तुमको यूज करेंगे उसको ही अपन क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। ओके, तो ये जो फोनोमेना है रोटेटिंग रिलेटेड जो भी तुमने अगर से फोर व्हीलर जितने अगर से टू व्हीलर फोर व्हीलर अगर से मार्केट में अगर से तुम देखते हो बराबर है, जितनी ज्यादा कॉस्टली गाड़ी रहेगी उसका उतना वाइब्रेशन और नॉइस कम होते रहता है। दैट इज इंडिकेट दैट वो ईच एंड एवरी रोटेटिंग पार्ट्स को प्रॉपरली बैलेंस
करते हैं, इसीलिए उसका कास्ट भी उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, बरोबर है। फोर व्हीलर है, यू टेक द एनी एग्जांपल ऑफ द फोर व्हीलर, जितनी भी तुम अगर तो रोड पे चलने वाली फोर व्हीलर अगर से देख रहे हो, वहां पे जो व्हीकल के कास्ट है, अगर से तुम्हारे डेफिनेटली अगर से लो कास्ट वाले अगर तुमने व्हीकल परचेस किए हो और ऑस केयर टू अनदर हाई कास्ट वाली अगर से व्हीकल तुम परचेस किए हो, तो डेफिनेटली दैट टाइम यू आर फेसिंग द मच मोर डिफरेंस इज नथिंग बट जो भी उसके इंजन के ईच एंड एवरी रोटेटिंग के जो पार्ट्स है, उसको ईच एंड एवरी पार्ट को प्रॉपरली बैलेंस करता है, उसका इफेक्ट उसके नाइस के ऊपर भी जाता है, और दैट टाइम दे आर प्रोवाइडिंग दी मच मोर मुझे कंफर्ट टू द ड्राइवर और एनी अदर ह्यूमन बीइंग वी आर सिटिंग इनसाइड ऑफ दिस कार और व्हीकल। ओके, तो उसको उसके वजह से उसके कॉस्ट के ऊपर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होता रहता है। ओके, दिस आर द अबाउट द रोटेटिंग मासेस। आफ्टर दैट वी आर सी द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। ओके, उसको बैलेंसिंग कैसे करना है। ओके, दिस आर द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर प्रोवाइडेड। मींस जो भी तुम्हारे इंजन के और फोर व्हीलर टू व्हीलर और एनी शिप के ऊपर डेफिनेटली डिफरेंट टाइप ऑफ जो रोटेटिंग मासेस एक्ट हो रहे, बरोबर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट एंगुलर मूवमेंट्स के वजह से जो भी तुम्हारे डिफरेंट मासेस उसके ऊपर रिएक्ट हो रहे, तो उसको बैलेंसिंग करने की पर्टिकुलर डिफरेंट दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट मेथड। वी आर ऑलरेडी सी ना, अपन ऑलरेडी बोल रहे कि जो भी मासेस एक्ट हो रहा है, इट में बी मास एक्ट इन सेम प्लेन on a mass act on a same plane, डिफरेंट प्लेन में भी एक्ट हो सकता है। तो ईच एंड एवरी मासेस उसको बैलेंस करने के लिए वी रिक्वायर द these are the following different type of cases. Okay, first is this balancing of a single rotating masses by single mass rotating in the same plane. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल रोटेटिंग मासेस बाय सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन। इट में भी अगर सिर्फ फोर व्हीलर का अगर से एग्जांपल लिया, टू व्हीलर का एग्जांपल लिया, तो डेफिनेटली अगर सिर्फ फोर व्हीलर अगर से यहाँ पे और एरोप्लेन अगर से अपन यहाँ पे कंसीडर करें, दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक मास तो नहीं होगा, एक देयर आर कंसीडरिंग वेयर मींस डिफरेंट मासेस, वो डिफरेंट लोकेशन में फिट खींचना। अगर तुम्हारे फोर व्हीलर का एग्जांपल लिया तो डेफिनेटली सपोज वो फ्रंट व्हील ड्राइव रियर व्हील ड्राइव है, तुम्हारा इंजन की पोजीशन फ्रंट में है या बैक में है, और तुम्हारा प्रोपेलर साफ फ्रंट पे लगा है और बैक में संभाल है, उसके मुताबिक उसको अपन को क्या उसके जो मासेस एक्ट हो रहे उसको इट में भी मासेस रोटिंग इन अ same plane or different plane. Point number second is that balancing of a single rotating mass by two mass rotating in a different plane. Okay, तो डिफरेंट तो मासेस हुए, इट में बी रोटिंग इन द सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन, जो भी आपको बताया डिपेंड अपॉन योर फोर व्हीलर, इट में बी फ्रंट व्हील ड्राइवर रियर व्हील ड्राइवर उसके इंजन की पोजीशन किस साइड में है, उसके मुताबिक उसके जो डिफरेंट अपन द प्लेन देखते हैं ना, बरोबर है, इट में बी सम प्लेन लाइक सम सिंगल मास सिंगल प्लेन पर डिफरेंट मास डिफरेंट प्लेस, सेम थिंग्स two masses rotating in the different plane. Point number third is that balancing of a different mass rotating in the सेम प्लेन, यानी कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट मासेस है। ओके, डिफरेंट मासेस रोटिंग इन द सेम प्लेन। ओके, मींस तुम्हारे इंजन की अगर से बात की जाए तो डेफिनेटली वहां पे भी क्या हो रहा है, डिफरेंट मासेस एक्ट हो रहे, बराबर है, तुम्हारा क्रैंक होगा, कनेक्टिंग रॉड हो गया, अदर एक्सेसरीज होगी जो इंजन के रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज तुम वहां पे वो असेंबल करते हो, अदर एक्सेसरीज आल्सो मतलब डिफरेंट मासेस रोटिंग इन द सेम प्लेन। ओके, इन केस ऑफ द सपोज यू आर taking the example of the plane. Okay, different balancing of a different masses routing in the different planes. अगर से प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह अगर से अपन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्लेन के, अगर से वहां पे प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह काफी वहां पे तो जनरली 4.22 इंजन आल्सो भी प्रोवाइड, दैट टाइम डेफिनेटली दे आर डिफरेंट masses in the rotating in the different planes. Okay, this all these parameter, these all the cases, important cases when balancing of the rotating masses. For that purpose, these are the different type of cases provided. It may be single masses rotating in the same plane, or two masses rotating in a different plane, or different masses rotating in the same plane, or different masses rotating in a different plane. This all these points, this all these cases with help of this what mathematical analytical calculation or graphical calculation with respect to particular rotations. Okay, with respect to particular rotation we are see, suppose we are taking the single slider का mechanism अगर अपन ने अब उसका अगर से अपने with help of the analytical और graphical calculation अगर से उसको फाइंड करना है कि इसके ऊपर आने वाले masses कितने हैं, this all this for that purpose we see the primary requirement is that उसकी particular उसकी लेंथ कितनी है, वो कितनी इंक्लिनेशन में रोटेट हो रहे हैं और उसके ऊपर आने वाले masses कितने हैं, all this
all these element, all these parameter we require for the analytical and graphical purpose. Okay, calculation purpose. These are the basics importance. Balancing rotatings. These are the different cases. Okay. After that, we are see the balancing balancing of a single rotating mass by single mass rotating in the same plane. This is the first one. First point is this is the our first case. Okay, balancing of single rotating mass by single mass rotating in the same plane. This is the first criteria. How do we are with help of the mathematical calculation? How we are balancing it? Okay, balancing of a single rotating mass by single mass rotating in the same plane. Consider a disturbance mass m1 attached to the soft rotating soft omega radian per second is shown in figure. This nothing but below ये इसके नीचे कॉर्नर में अगर देखते हैं पर्टिकुलर को डायग्राम शो होती है. ओके, वी आर फर्स्ट कवरिंग ऑल द पॉइंट्स. ओके, द सेकंड इज नथिंग बट विथ जो भी मासेस है दिस आल्सो रोटेटिंग पर्टिकुलर जो भी मासेस लेट r1 इज नथिंग बट उसकी रेडियस भी होगी. जो भी मासेस रोटेशन होंगी, जब भी अपना क्रैंक रोटेट होता है 360 डिग्री में रोटेट होता ना, तो उसकी जो पर्टिकुलर रेडियस भी होंगी ना, बरोबर है. कितने रेडियस में 360 डिग्री में कवर करता है, बरोबर है. ड्यू टू उसका क्रैंक का कितना मासेस है, दिस ऑल दिस पैरामीटर एज वेल एज उसकी रेडियस मींस एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, दिस ऑल दिस पैरामीटर विल बी बैलेंसिंग द एनी एलिमेंट्स दैट टाइम. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट वी रिक्वायर्स. आफ्टर दैट means let r1 is the radius of the rotating masses and mass is m1, that is a distance between the axis of rotation of the shaft and the center of a gravity of the m1. Okay, we know the centrifugal force extended by the mass n1 of a shaft fc1 is equal to m1 omega r. ये this nothing but means उस एलिमेंट का पर्टिकुलर मास कितना है और वो जो मास उसको उस एलिमेंट में है एज वेल एज उसकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट हो रही है, और जो एंगुलर वेलोसिटी वो पर्टिकुलर उसका रेडियस कितना है, वो पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट तुमने सिलेक्ट किया, इट में भी मशीन और मशीनरी एनी टू व्हीलर फोर व्हीलर एनी व्हेन वी टेकिंग द एनी एग्जांपल ऑफ मशीनरी, वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितने पर्टिकुलर रेडियस में मूव हो रहा है. ये मूव होने की वजह से जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी कैन इजीली कैलकुलेटेड मींस ये डिफरेंट मैथमेटिक्स मींस उस जो सपोज यू आर टेकिंग द डिजाइनिंग ऑफ द एनी इंजन दैट टाइम सर उसके ऊपर मासेस कितने एंगुलर वेलोसिटी में वो मूव कर रहा है एज वेल एज उसकी पर्टिकुलर रेडियस कितनी है, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल मासेस फाइंड करोगे. सेम सेंट्रीफ्यूगल मास फाइंड करने के बाद अपन वी आर ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस जो सेंट्रीफ्यूगल मास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही अपने को क्या करना है, उसको ही वी कैन बैलेंस इट विथ द हेल्प ऑफ दिस उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और डायनामिक फोर्स जो भी तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ये इसको ही अपने को बैलेंस करना है. लेकिन जो भी बैलेंसिंग फोर्स तुम लगाओगे इट इज अपोजिट डायरेक्शन में, न्यू मास जो लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, ये डायग्राम में अगर से शो कर रहे तो let's see this diagram with help of the this nothing but axis of rotation you are showing. Okay, axis of rotation m1 m2 are the disturbance masses. Okay, ये जो डिस्टर्बेंस मासेस है फ्रॉम योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन जब तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे, डेफिनेटली जब तुम्हारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स रोटेशन हो रही दैट टाइम व्हाट इज योर मास इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो जो इंपैक्ट यहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, so axis rotating in the clockwise direction at the same time तुम्हारा m1 जो है it rotating in the anti-clockwise direction. Okay, that time what happen due to the presence of some जो भी तुमने यहाँ पे एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो r1 यहाँ पे शो किए, जो भी तुमने लिंक वगैरह जो भी क्रैंक सपोज तुम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ क्रैंक रेडियस का तुमने लिए हो, तो उसका जो मास है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग द डिस्टर्बेंस. ओके, डिस्टर्बेंस मास उसको जो डिस्टर्बेंस मास है ये तो उसको अपने को बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड में सी बिलो m1 m2 द मैसेज प्रोवाइडेड विद हेल्प ऑफ द m2 मैसेज दिस नथिंग पर जो तुम्हारा डिस्टर्बेंस मास था उसको बैलेंस करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुआ था उसको बैलेंस करने के लिए वी आर टेकिंग दिस उसके अपोजिट डायरेक्शन में m1 के नीचे m1 के नीचे m2 और m1 के नीचे m2 जो बैलेंसिंग मास लगाया है दिस नथिंग बट यू आर व्हेन वी दिस इज नथिंग बट यू आर अपोजिट डायरेक्शन में लगा के उसका ऊपर ये नहीं है वो कंडीशन में जो भी तुमने मैकेनिज्म बनाए हैं उसको तुम बैलेंस कर सकते हो. ओके, आफ्टर दैट वी आर सी द पॉइंट नंबर सेकंड. ओके, पॉइंट नंबर सेकंड दिस नथिंग बट यू आर कंटिन्यूअस. सपोज टू मासेस को अपन वहां पे अपन सिंगल वहां पे डेफिनेटली ये दीज आर द कंटिन्यूअस वो उसी में देखो रेडियस r1 r2 एट द सेम टाइम
अगर से तुमने जो मैसेज अगर उसको बैलेंस करना है, दैट टाइम यू मस्ट टेकिंग द रेडियस r1, उसके r1 r2 फाइंड करके उसको प्रॉपरली वो इक्वेशन बना के उसको तुम m1 r ओमेगा स्क्वायर मीन्स कंपैरिजन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में मासेस 1 और मासेस 2 के कंपैरिजन करके तुम पर्टिकुलर रेडियस कितने, पर्टिकुलर रेडियस में तुमको न्यू मास जो भी तुम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मिनिमाइज करना है, तो कितने रेडियस यू कैन फाइंड इजीली विथ हेल्प ऑफ दिस mathematical calculation. Okay, this is nothing but this is the another third is very important thing is that balancing of we are seeing the this nothing but what this is the different cases balancing of a single mass two by two masses rotating in the different place. इसके पहले क्या देखे थे अपन ने, same masses same plane, same single masses different plane, but here what happen, two masses in a different place, दोनों different masses है different जगह में मूव हो रहे. That time such type of phenomena happen in the any machinery भी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, उस मशीन के ऊपर काफी नंबर ऑफ रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मशीनरी का अरेंजमेंट जहाँ पे असेम पर्टिकुलर अरेंजमेंट है उस मशीन में, उस समय दिस फोनोमेना विल बी टेक प्लेस. उसको एनी हाउ कंडीशन में डेफिनेटली ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे जो यूज किए थे, डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंपोनेंट और नंबर ऑफ मासेस यहाँ पे इंक्रीज होंगे, लेकिन तुम्हारा रेडियस मासेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर सेम. ओके okay, this nothing but another thing is that balancing up a single mass by two masses rotating in the different plate. Okay, ओके तो दिस इसमें अगर से पॉइंट वन देखे तो द प्लेन ऑफ डिस्टर्बेंस मास में बी बिटवीन the place of two balancing masses. Next is that the balance of disturbance masses may be lies on the left or right. Two plane contain the balance masses. उसको any how condition अपने को balance करना है. Okay, this is another important thing when the plane of disturbance lies in the between plane and the two balance. अगर से some masses को अगर से balance करना है with help of this this is the different things with help of this is with respect to इसके पहले अपन ने जो भी with respect to radius भी देखे थे, यहाँ पे some particular different masses and they are fixed in the different length, यानी different masses in the different plane. Okay, different masses to different planes with respect to some L1 L2 L3 also be provided ना, the length between the plane A to L, then distance में L2 is nothing but distance between the plane A to M, so and so. मुझे different masses को भी जब तुमको अगर से बैलेंस करना है with the plane disturbing the masses line in the between the plane of two balancing masses मास करने के लिए with help of the mathematical calculation we are see further with help of the some mathematical example. Okay, न्यूमेरिकल में वो सभी चीजें कवर होंगी, इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अपन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस जो अपन बैलेंसिंग सेम मासेस में दिखे थे, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो कितने लेंथ के ऊपर तुमको बैलेंस करना है विथ सिंपल जो भी तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F1 FC1 एक्ट हो रहा है, FC2 एक्ट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के एक पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ कितने लेंथ में तुमको लगाना है, दिस आर द मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके अपन ये नहीं हो कंडीशन में उसका अपन बैलेंस करते रहते हैं. दिस आर हाउ टू बैलेंस दिस नथिंग बट टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ईच एंड एवरी जो उसको पर्टिकुलर बैलेंस करना है, फॉर दैट पर्पस वी आर डूइंग दिस, वी आर फाइंडिंग द डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट लेंथ में भी, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन में तुमको भी अटैच करना है ना, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस आर द डिफरेंट थिंग. ओके, इन ये कंडीशन में अपने को बैलेंसिंग करना है. these are nothing but the mathematical formula balancing of same plane. Okay, same plane में with is okay, these are the analytical method. We are see the analytical method और ग्राफिकल मेथड डायरेक्टली जो भी मासेस तुमने अभी तक के देखे वो मींस विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लेंथ में लेके उसका अपन शिफ्ट किए मास 1 मास 2 मास 3 एट द सेम थिंग एंड अनदर स्पेस डायग्राम प्रोवाइडेड. सपोज इन केस ऑफ सेम मासेस डिफरेंट प्लेन में लगाए होंगे तो दैट टाइम डेफिनेटली यू आर टेकिंग द मास 1 L1 मास 2 L2 मास 3 L3 सेम थिंग एज वेल एज सम देयर मासेस इज रोटेटिंग. सपोज जो मासेस पर्टिकुलर एट वन पर्टिकुलर एंगल में रोटेट होंगे, एंगुलर डायरेक्शन में जैसे वो मासेस रोटेट होता होगा, जैसे वी आर टेकिंग द θ1 θ2 θ3 θ4 सो या सो. ओके, मींस एनालिटिकल अगर से अपने को फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बैलेंसिंग मास में बी ऑप्टेन बाय द एनालिटिकल is discussed below. Okay, first of all find the all the centrifugal force acted by the each mass rotating of shaft, यानी कि जो भी शाफ्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने एक्ट हो रहे, हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
एक्ट कितने हो रहे विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंक्लिनेशंस, उसको अपन फर्स्ट रिजॉल्विंग करेंगे। जैसे अपन सबमिशन एफएक्स एफएक्स वाई ऑलरेडी वी आर सीन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो सबमिशन करके तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सटेंड बाय द मास ऑन रोटेटिंग शाफ्ट। ओके, तो उसमें सेकंड फाइंड रिजॉल्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। okay, and find their mass, find their sum, that is the summation of fx and summation of fy means जो भी रिजॉल्विंग फोर्स है, यहाँ पे स्पेस डायग्राम ऑलरेडी शोइंग। ओके, जो भी मासेस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड इट मे बी cos थीटा और sin थीटा, we can find it may be horizontal summation of horizontal centrifugal force, horizontal component of a centrifugal force की डायरेक्शन में आ रहा, as well as sum of वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में कितने आ रहे विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंक्लिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है विथ हेल्प ऑफ द स्पेस डायग्राम, सपोज वी आर टेकिंग दिस नथिंग बट अ स्पेस डायग्राम फॉर क्रैंकशाफ्ट। अगर से क्रैंकशाफ्ट एक पर्टिकुलर रोटेशन में दिस नथिंग बट रोटिंग इन द व्हाट 360 डिग्री, बराबर है 360 डिग्री में, दैट टाइम यू आर टेकिंग द एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 and we are resolve it with respect to horizontal component and vertical component. Okay, you means horizontal component of the centrifugal force and vertical, after that vertical component of the centrifugal force we resolve it, after that magnitude of the resultant centrifugal force, वो जो lastly we can get the centrifugal force उसका magnitude कहाँ पे एक्ट हो रहा है here रिजल्टेंट, वहां पे भी स्पेस डायग्राम में ऑलरेडी शोइंग दैट रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा, और अपने जो तुमने मासेस एक्ट किए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डार्क लाइन में शो किया, देखो जो बाल के समान जो सर्कुलर सिंबल है जो डार्क में गिवन है, दिस नथिंग बट यू आर, जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन ने ऑलरेडी मैथमेटिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट से कैलकुलेट वी आर विथ हेल्प ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट जो भी अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट किए हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्किंग इन द अपर डायरेक्शन बट यू आर डाउन मीन जो भी तुमने उसको बैलेंसिंग करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तुमने एक्ट किए हो। नंबर आफ्टर दैट देखो वो उसका इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, इफ थीटा थीटा इज द एंगल दो विच इज रिजल्टेंट फोर्स मेक विद द हॉरिजॉन्टल, देन tan थीटा tan थीटा जो तुम जो बैलेंसिंग कर रहे होंगे उसके बाद विथ एनालिटिकल मेथड, तो उसका पर्टिकुलर कितने डिग्री में विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितने डिग्री में होना चाहिए, उसके लिए विथ हेल्प ऑफ द tan थीटा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो कैलकुलेशन करके पर्टिकुलर तुमको थीटा मिलेगा। देन दिस विथ हेल्प ऑफ द थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये जो भी थीटा कैलकुलेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, दिस मस्ट बी कीप इन योर माइंड्स। ओके, देन वो हॉरिजॉन्टल से लेंगे। देन फिफ्थ नंबर पॉइंट इज दैट द बैलेंसिंग फोर्स इज देन द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी अपोजिट डायरेक्शन, जो अभी तक कि मैं तुमको बताया था दिस नथिंग बट जब अपन ये नहीं इन्हीं चीज को अपन बैलेंसिंग करेंगे दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग, जो भी न्यू फोर्स रिजल्टिंग फोर्स इन वी आर रिप्लेसिंग इन द न्यू मास, we are already see previous to 10 or 20 minute before means जो भी रिजल्टिंग फोर्स तुमको एक्ट होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में दिस पॉइंट कवर ईयर्स। ओके, मींस तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट है अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम यू आर जो उसको बैलेंसिंग कर रहे होंगे, वी आर एनालिटिकल मेथड मींस बैलेंसिंग करने के अपन एनालिटिकल मेथड देख रहे हैं। वहां पे जो एनालिटिकल मेथड में अपने सबमिशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसके रिजल्टेंट निकाल रही है, थीटा पर्टिकुलर इंक्लिनेशन दिखाएगी, उसके बाद थीटा भी कैलकुलेशन कर रही है, लेकिन आफ्टर दैट जब तुम वो पर्टिकुलर उसको बैलेंसिंग कर रहे होंगे दैट टाइम व्हाट हैपेंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो भी मास तुम वहां पे विथ मैग्नीट्यूड का मास लगाओगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू द एनालिटिकल मेथड में आते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी आर सी द ग्राफिकल मेथड। ओके, डेफिनेटली एनालिटिकल मेथड का सिंपल कैलकुलेशन ओके करके अपन वी आर फाइंड इजीली, but analytical method से भी this is the very simple method. Okay, this nothing but a graphical method with help of the graphical method same process we are following. Okay, with respect to suppose crank is you are rotating in 360 degree. Okay, यहाँ पे दो डायग्राम with help of the इसमें भी स्पेस डायग्राम एंड वेक्टर डायग्राम, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसको अपन रिप्रेजेंट करके जो भी इसके पहले तुमने फोर्स वहां पे क्या किए थे, यहाँ पे पर्टिकुलर वेक्टर डायग्राम निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्केल लेके बाद में अपन उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो जो फोर्स एक्ट होगा उसका अपन मैथमेटिकल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल वो उसका मैग्नीट्यूड कितना एक्ट होगा तुम विथ हेल्प ऑफ दिस वेक्टर डायग्राम यू कैन इजीली कैलकुलेट मींस जो भी ए टू बी बी टू सी सी टू डी दिस नथिंग बट यूर इफेक्टर डायग्राम क्या किए इसको अपन ने रिजल्व किए है।
जो एक डायरेक्शन F1 से F ये टू भी देखो तुम्हारा थीटा वन में क्या शो कर रहा है, थीटा वन R1 FC1 विथ रिस्पेक्ट टू M1, नथिंग बट उसके जो पर्टिकुलर इंक्लिनेशन है उसी इंक्लिनेशन में अपन ने यहाँ से ये टू बी लाइन ड्रा की। theta 2 is nothing but R2 M2 FC2, okay, with vertical direction, so and so means we are doing the particular process. After end of this means E point A and E we are with help of this scale अपन उसका पर्टिकुलर स्केल मीन्स ये जो भी तुम डायग्राम बनाओगे विथ हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुमको बाद में लास्टली तुमको वैल्यू कन्वर्ट करना ही है, ओके। जो स्केल को मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओके। दिस आर नथिंग बट अ ग्राफिकली मेथड, ओके। ग्राफिक सेम थिंग्स दिस ग्राफिकल मेथड में जो तुमने कैलकुलेशन किए होंगे सेम थिंग्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द स्पेस डायग्राम विद द position of several masses in a shown figure, okay, easily guess. After that find out centrifugal force or produce of the masses, radius, rotation extend by the each masses on the rotating shaft, okay। now draw the vector diagram। definitely अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि कैसे क्या डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जहां से थीटा वन R1 M1 F1 जहां से जिस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन से स्टार्ट वगैरह वहां पे वन पॉइंट कीप यू टेक द वहां पे एक पॉइंट ले लो और वहां से एक पर्टिकुलर डायग्राम बना लो, ठीक है। देन सेकंड B C F1 F2 F2 F3 same process you must follow। lastly here see same process is that lastly here also we see that जो अपने एनालिटिकल मेथड में दिखे थे अभी ये ग्राफिकल मेथड में वही देख रहे। नंबर 4 पॉइंट इज नाउ एज पर एज पॉली तो स्पेस डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम है, तो उसके ऊपर देखो पॉइंट नंबर 5 ये बैलेंसिंग फोर्स देन इक्वल रिजल्टिंग फोर्स मस्ट बी अपोजिट डायरेक्शन। एनी हाउ कंडीशन में अपने जो भी मासेस है उसको अपन अपोजिट डायरेक्शन में यक करके उसका अपन एनी हाउ कंडीशन में अपन उसको बैलेंस करते हैं। दिस आर द टू मेथड प्रोवाइडेड फॉर द बैलेंसिंग पर्पस। इफ यू आर मास एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, सेम masses same plane or several masses in the same plane or different masses in the same plane, different masses in a different planes, with help of the analytical method and a graphical method we can solve it, okay। after that we are see this is the small example provided here, the how to sorry this is the graphical method provided with help of the mathematical calculation। This also such type of example I think you are covering your academics also। this all this parameter given तुमको इसके मुताबिक उसको ये नियम कंडीशन में जो भी पैरामीटर के रिजल्ट निकाल के थीटा वन थीटा टू ऑल दिस पैरामीटर इज गिवन, थीटा वन भी निकाल सकते हो डेफिनेटली, M1 R1 L1 ये सभी बैलेंस करके तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और तुम्हारा मैग्नीट्यूड करके तुम एनी हाउ कंडीशन हियर दिस ऑल दिस कवर ऑल दिस थीटा वन थीटा टू कितने डायरेक्शन में होना चाहिए, दिस ऑल दिस पैरामीटर विद रिजल्टिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स। फिर उसके पास अपन रिजल्टिंग ये जो एनालिटिकल मेथड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एंड फाइंडिंग द रिजल्टेंट, then how much inclination with respect to vertical horizontal direction में कितना inclination होना चाहिए, then we are balancing it, okay। then graphical method में same equation same formula same with taking up same masses same radius and inclination we can with help of the analytical method से अपन यहाँ पे analytical method से भी solve कर सकते हैं, okay। these are the several balancing on different planes। देखो अभी several masses in different plane, ये जो masses है मींस different masses और different plane इसका भी mathematical calculation with help of this कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देखो masses different, यहाँ पे क्या बोल रहा है बैलेंसिंग ऑफ several masses rotating in the different plane के ऊपर अगर से masses rotate हो रहे हैं same things डेफिनेटली इसके भी अपन कैलकुलेशंस विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम देखो यहाँ पे उसके भी अपन विद हेल्प ऑफ द सेवरल मेथड डिफरेंट प्लेन उसके भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके ओके। विद हेल्प ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेन मासेस एंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ द मासेस ये सभी निकाल के मैथमेटिकल कैलकुलेशन इट में भी एनालिटिकल ग्राफिकली यू कैन इजीली सॉल्व। दिस आर द बेसिक कंपोनेंट्स, दिस आर द बेसिक mathematical calculation required for the balancing purpose or it may be rotating masses or reciprocating mass anyhow condition में before designing the any component of any engine or any two wheeler four wheeler or planes with help of the analytical graphical method you must calculate each and every masses उसके रेडियस कितने रेडियस कितना होना चाहिए इच ऑल दिस थिंग्स वो प्रॉपर्ली बैलेंस है क्या नहीं है। जो भी तुमने मैन्युफैक्चर एट फ्यूचर जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग करोगे वो प्रॉपर मैनेज है क्या नहीं है,
This all this calculation you can done previous before designing the any car or before manufacturing the any car with help of the different type of these are the analytical or graphical method. Okay, after that we are see this is the how to this nothing but this one several masses rotating on the different plane. जो several masses है different different plane में कैसे क्या उसको resolve करना है, this nothing but with help of the this diagram, this taking the example कि nothing but plane वन के ऊपर कितने masses आ रहे हैं, plane masses उसके कितने हैं, m1 m2 m3 and radius from okay, then centrifugal force omega m into r definitely, then length वहां से कितना है, these are the centrifugal force which is centrifugal couple, वहां से तुम find करके any how condition में तुम balance कर सकते हो, this nothing but you are their example. Okay, okay, these are the coupling ये with help of the mathematical calculation each and every you are properly balanced. Okay, these are the different different with help of the example there see we are cover here. Okay, these are the related to the balancings. After that we are see the we are see okay, just a minute, these are nothing but these are the different type of vector diagram, polygon diagram that times, but this is the very complicated situation. That time you time to time we require what you take in the much more time, we require the scale taking purpose, you take in the much more time, and it's a very complicated situation. Okay, okay, after that we are see the gyroscope. Okay, after that we are cover rotating means balancing of rotating and reciprocating rotary masses. After that this is the gyroscopic. Okay, this is the very interesting effect interesting topic, as well as gyroscopic is nothing but what. Okay, we are list for the see the gyroscopics. After that we are see the discussion means how to effect take place. Okay, or plane or ship and four wheeler or two wheeler drive, when the when there is axis of a spline and the axis of a precision perpendicular to each other, then and then only gyroscopic effect of couple take place. Okay, or four wheeler for suppose we are taking the example of four wheeler जब run होती रही that time what happens, you are four wheeler means front wheel rear wheel also be rotating, it may be forward direction or backward direction. At the same time your engine also be rotating in the club means rotating, it may be rotary motion and reciprocating motion, as well as engine related accessories or your propeller shaft, it may be rotating in the clockwise direction or anti clockwise direction. वो this also उसका जो effect है means four wheeler और two wheeler का जो means when we is going to the forward direction in a particular direction म्हणजे जो suppose when this is moving on the x direction or y x direction or z x direction बरोबर है, but when we taking the turns. Okay, when we taking the turns यानी कि जो तुम particular direction में जा रहे हो, लेकिन that time when we means when we taking the turns means your x axis y axis z axis ये जो direction है इसके इसके मीन्स ये एक्सिस को छोड़ के जब तुम पर्टिकुलर इंक्लिनेशन लोगे बरोबर है विथ रिस्पेक्ट टू कर्वेचर पाथ मीन्स when we taking the curvature part, that time definitely your front tire or front tire and इनर डेड सेंटर एंड टेक प्लेस एंड आउटर डेड सेंटर बरोबर है मीन्स तुम्हारे टायर की जो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे डेफिनेटली उसकी पोजीशन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में न जाते हुए दे आर सपोज वी आर कंसीडरिंग दे आर गोइंग द एक्स डायरेक्शन बट व्हेन वी आर taking the turn, that time what happens, your direction will be changed. Okay, we are taking this curvature path, that time due to the presence of what your vehicle different it may be rotating speed with a rotating speed reciprocating motion or properly softly rotating in the clockwise direction, ये सभी का जो इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है दिस नथिंग बट यूर गायरोस्कोपिक, उसके ऊपर गायरोस्कोपिक इफेक्ट आता रहता है. ओके, दिस द some timing engine also some rotating part, and with the these rotating parts while taking the turn during the curve there will be some axis of precision perpendicular the axis of the spine of engine. तो spine of engine के perpendicular होने की वजह से the gyroscopic couple take place. Okay, but gyroscopic effects, it is the angular curvature, this is the gyroscopic effect, nothing but it is the result of angular momentum conservation principle. This working on the this working of angular momentum conservation principle. Okay, we know that linear momentum is nothing but mass into velocity, but this in the gyroscopic effect angular moment take place. Angular moment is nothing but mass of inertia
okay, into means mass of inertia into angular velocity. These are the parameter must be considering in the moment of this angular momentum conservation principle. With help of the conservation principles, this gyroscopic or gyroscopics take place. Okay, after that, what is the gyroscope device? This nothing but this is the diagram is showing device used to measure the maintenance, maintain orientation, okay, or measure orientation purpose. Generally this type of this is a device is provided. This this you can see this is the one element provided, the rotor and spine axis and gyroscopic frame and gimbals. Okay, these are the elements this device is provided with miss this in this device what happens due to the rotor spline, they are rotating in the different direction, means they are rotating in the different direction. Okay, work on the principle of the angular moment. Definitely we are already I am already explained you it is nothing but is the angular moment. This gyroscopic effect is nothing but a result of angular moment conservation principle के ऊपर वो work कर रहा है. It may be initial axis of a rotating conserve and consists of the spine of mass of a axis. Okay, how how gyroscopic work? Okay, it mechanical gyroscope is equal to spanning mass mounted of the gimbus. Second is nothing but a free out versus a fixed output. Third is that sensor on examine the detection. What is electronics gyroscopes? Collineous vibration gyroscope proof of mass speed of oscillating current of the introduced vibration. Third point is that vibrating mass tend to the oscillating in the initiate plane of the reference. Third is that when the rotated oscillating on the orthogonal plane detected by the circuitry. Okay, this is the working of the gyroscope. Okay, this gyroscope generally used for the common use. This nothing but common use in case of the gyroscopes used by the ship in the find of the true north. जो पर्टिकुलर तुम्हारा शिप अगर से मूव हो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फॉर द डायरेक्शन पर्पस आल्सो भी दिस इज द गायरोस्कोपिक्स यूज एंड सी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. ओके, six minimum potential energy. After that, this is the common again is nothing but a stability assistant purpose. Stability assistant है क्या नहीं उसके लिए भी, as well as Hubble space telescope they are also be using in the gyroscope and bicycles. Okay, next is that in initiate guideline by the system guided missile को guide करने के लिए भी this gyroscopic use measure angular velocity of inertia reference frames. Next is that detecting change in the orientation, and next is that combined with the accelerometers for the six axis sensor. Okay, angular moment. Okay, for angular moment for what is the time derivation of the angular moment about the pivot about the gyroscope. Okay, and this is the disk provided. Okay, when the disk is rotating in the clockwise direction, then see here this consists of some this disk also consists of some masses. Okay, with respect to G also भी provided gravitation force. Okay, this angular moment की वजह से वो definitely उसके एक्सिस के ऊपर से वो जो मैंने इसके पहले जो एग्जांपल दिया था ऑलरेडी, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिस्क अगर से उसका पर्टिकुलर वेट होगा, वेट होने की वजह से जब वो पर्टिकुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट वो एक्सिस के ऊपर आएगा और वो एक्सिस से थोड़ा सा विथ रिस्पेक्ट टू इंसेंट्रिसिटी थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएंगी. ओके, this nothing but a gyroscopic couples. Okay, see here, this nothing but a gyroscopic couples. This diagram consists of the see here there is provided जो अभी तक अपना डिस्कशन किए gyroscopic के ऊपर how we actually work are. I am give the example of when we taking the when we are taking the turns. Okay, or a ship or when we taking the turn on the cars. Okay, or taking the turn or a ship, that time which type of couples acting on it. This is the all the idea about this gyroscopic provided by this diagram is what happens. There is one disk is provided बरोबर है, डिस्क के ऊपर वो दिस नथिंग बट दिस मॉडल आता एक्स एक्सिस, आफ्टर दैट जेड एक्सिस एंड नथिंग बट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन दिस नथिंग बट यूर वाई एक्सिस. जेड डायरेक्शन के अपोजिट वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जेड जेड डैश आल्सो बी गिवन.
दिस नथिंग बट ओरिजिन एक्सिस ऑफ स्पाइन, उसको अपन जो इसके अंदर जो स्पाइन देखे थे, जो भी अपन गायरोस्कोपी का भी ये डिवाइस इसके पहले जो देखे थे, दिस ऑल दिस पैरामीटर उसके जितने भी ये है, ये जो गायरोस्कोपिक्स, सॉरी, ये जो तुमने गायरोस्कोपी का डिवाइस देखे थे, इसके जितने भी पार्ट्स है, रोटर्स है, ग्लिम्बर्स है, स्पाइन एक्सिस है यार, गायरोस्कोपिक फ्रेम है, दिस ऑल दिस पैरामीटर कवर ईयर्स मींस विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, बरोबर है। वी आर सी ईयर्स, जस्ट अ मिनट प्लीज, प्लीज सॉरी, gyroscopic, this nothing but a gyroscopic of us see x axis, y axis and z axis. I am already explain you when we taking, जब आप तुम गाड़ी चलाते उस समय भी क्या हो रहा है, जो अभी मैंने इसके पहले बताया था कि तुम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, विथ तुम्हारे अपने फोर व्हीलर में एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाई विल टेकिंग द टर्न, इट मे बी taking the turn is the left direction or right direction, that time what happens means तुम्हारी जो पर्टिकुलर एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उससे पर्टिकुलर तुम इंक्लिनेशन ले रहे, मींस योर ओरिजिनल एक्सिस से तुम कुछ कहीं तो भी, इट मे वी आर टेकिंग दिस समवन थीटा इंक्लिनेशन और इट मे बी राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, ओके। तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वी यहाँ पे इंक्लिनेशन गिवन है, मींस जो डिस्क रोटेट हो रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन शोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक डायरेक्शन, उसका जो थीटा एंगल है तो एक डायरेक्शन से शो किया है, दिस नथिंग बट योर इंक्लिनेशन व्हेन वी टेकिंग द टर्न इट मे टू व्हीलर और फोर व्हीलर और दिस गायरोस्कोपिक इफ कॉल्ड द एज वेल एज द प्लेन, प्लेन में भी गायरोस्कोपिक कपलिंग्स होते रहते, ओके। व्यूवर व्यू फॉर द एक्स डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखो कंसीडर दिस, जो इसके जो भी ऑलरेडी एक्सप्लेन इसमें अंदर क्या चीज है अपन देख लेते हैं। कंसीडर दिस प्लानिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी w रेडिएशन पर सेकंड अबाउट द एक्सिस ऑफ स्पाइन ओ एक्स एक्सिस, वो जो मैंने अभी बताया कि जो तुम्हारा डिस्क माउंटेड है ओ एक्स एक्सिस के ऊपर है, वही डिस्क जब रोटेट होता है तो दैट टाइम दिस ओ एक्सिस के ऊपर से थोड़ा सा विथ रिस्पेक्ट टू ड्यू टू द सम मासेस, वो क्या हो रहा है, मासेस की वजह से क्या और इनबैलेंस हो रहा है, वो अपने एक्सिस पे रन नहीं होता है, होते हुए दे आर टेकिंग द सम थीटा एंगल, ओके। so theta angle it may be ox in the clockwise direction when the seen from the front is shown in figure, okay। then since the plane in which this is rotated in the parallel to the plane o, पैरेलल प्लेन में रोटेट हो रहा है y o z, देयर इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ स्पाइनिंग, ओके, उसको प्लेन ऑफ स्पाइनिंग बोलते हैं, ओके। गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी, अगर से वो जो गायरोस्कोपिक है उसको स्टेबिलिटी करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग वी मस्ट नो दैट, मैंने जो भी आपको स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया है, मी व्हेन वी डिजाइनिंग द एनी कार और एनी प्लेन और एनी शिप्स, दैट टाइम व्हाट हैपन आर एनी मशीनरी दिस कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोटेटिंग पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, दैट टाइम व्हाट हैपन्स मींस उसके ईच एंड एवरी उस जो स्टेबिलिटी अगर से करना इफेक्ट ऑफ द गायरोस्कोपिक कपिंग ऑन द एरोप्लेन, एरोप्लेन के ऊपर भी इस प्रकार के जो भी मींस जहां पे भी दिस मींस द मशीन दिस ऑल द गिवन फॉर द एरोप्लेन पर्पस, मैंने जितने भी आपको बताया इट में बी टू व्हीलर फोर व्हीलर और प्लेन और शिप, मींस जहां पे भी रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग मासेस लगाया है फॉर दैट पर्पस दिस इज द कॉमन थिंग्स, ओके। w is nothing but angular velocity of the engine in radian per second, m is nothing but mass of engine and the propeller in a kg, k is nothing but is it the radius of a gyration in the meter, okay। I is nothing but mass moment of inertia of the engine and a propeller in a kg meter square, this nothing but moment is nothing but mass into k square, उसको अपन क्या बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मींस उसका मोमेंट ईच एंड एवरी मोमेंट निकालते हैं, v is nothing but linear velocity of a aeroplane in the meter per second, okay। linear velocity linear velocity of a aeroplane in meter per second, one thing is keep on mind, but in this gyroscopic effect our gyroscopic effect definitely when we are going in the linear direction it may be linear velocity or angular velocity, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल लिया है with respect to they are considering, जब तुम डेफिनेटली जो मैंने तुमको फोर व्हीलर का एग्जांपल दिया था मींस लिनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट यू आर फोर व्हीलर और प्लेन आर मूविंग इन द वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, दिस नथिंग बट यू आर लिनियर वेलोसिटी, लेकिन गायरोस्कोपिक इफेक्ट but it is the result of angular momentum conservation principle के ऊपर ये वर्क करता है, this is the basic things keep in your minds, okay। r is nothing but the radius of a curvature in a meter as well as wp is nothing but angular velocity
precision, angular velocity of precision. Okay, angular velocity, all these parameters are cover here. Okay, means nothing but direction की direction तुम डिस्क को देख रहे हो जो प्लेन है मीन्स जो डिस्क है पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रेसिजन मीन प्लेन ऑफ प्रेसिजन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दिस ऑल दिस पैरामीटर विथ shown in means this all the mathematical calculation required. Okay, mathematical calculation for a plane purpose. Okay, after that this nothing but your gyroscopic couple acting on a aeroplane. This type of gyroscopic couple means gyroscopic couple actual कैसे क्या वर्क करता है दिशा लस्सी मीन्स कैसे इम्पैक्ट हो रहा है we are see here. Okay, gyroscopic couple acting on the aeroplane. Okay, C is nothing but I W omega P. This nothing but C is represent with help of the mathematical calculation we can gyroscopic couple which type of gyroscopic couple we are finding. Okay, for that purpose definitely we are see this nothing but what I W omega P. This are the cover here. Okay, angular velocity of precision and I is nothing but moment of inertia and W is nothing but what the angular velocity. These all these parameters with help of this gyroscopic effect we can calculate it. Okay, this is showing your front view. See here in a front view what happens front view direction of a vehicles वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है rear और tail end and back side is nothing but nose. Okay, उसको rear और tail end बोलते हैं और back side को nose बोलते हैं. Then here showing is the propeller shaft. Okay, this nothing but wings यहाँ पे भी शो किया है this nothing but a top view. Okay, और अगर से राइट साइड में अगर से और एक डायग्राम शोइंग कर रही बरोबर है जो अपने गायरोस्कोपिक का जो अपने डिवाइस देखे थे वहां पे जो भी जितने भी नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिवाइस ऑल दिस विद हेल्प ऑफ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. ओके, एक्सिस ऑफ स्पाइन इजीली कवर हियर, एक्सिस ऑफ प्रेसिजन एंड एक्सिस ऑफ एक्टिव गायरोस्कोपिक कवर गायरोस्कोपिक कपल विथ एक्स वाई डायरेक्शन में कोणते कोणते इफेक्ट आ रहे हैं दिस ऑल दिस पैरामीटर कवर हियर. ओके, मींस जब भी डायरेक्शन से व्यू करेंगे इट में बी रियर डायरेक्शन दैट टाइम व्हाट हैपेंस मींस प्रोपेलर जब तुम्हारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और दैट टाइम मींस व्हेन वी आर टेकिंग द ये डायरेक्शन में क्या गिवन है when we taking the left turn. Okay, वो कैसे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं बरोबर है सेम थिंग्स when we taking the left turn that time your propeller is moving in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बरोबर है मींस जब तुम लेफ्ट की तरफ जा रहे हो दैट टाइम व्हाट हैपेंस लेफ्ट टर्न ले रहे हो दैट टाइम प्रोपेलर एक्टिंग ऑन अ मींस अपोजिट डायरेक्शन. ओके, अब मुझे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट हो रहा है इसके ऊपर से गायरोस्कोपिक कपल टेक प्लेस. अगर से एग्जांपल अगर से ले रहे बरोबर है सपोज तुम फोर व्हीलर के ऊपर जा रहे हो और when we are taking the turn that time or you are sitting on the bus. Okay, suppose driver taking the left turn that time we are going the right direction and suppose driver taking the right turn that time we are going the left direction. This nothing but effect nothing but same thing happen here also. Okay, this nothing but a gyroscopic purpose. Okay, same thing happen here also means जो तुम्हारे ऊपर आने वाले इफेक्ट है definitely when we taking the turn that time propeller shaft is moving in the opposite direction. Okay, some term used in the naval ships the top here and front is shown in figure. So just you catch all this point properly. The term used in the naval ship the top here and front view of the naval ship is shown in figure. So is below provided called the bow and rear end is called of the stern and the arse of the left hand and right hand side of the ship. Okay, when the view from the stern is called of the port and stern boots respectively we are discussed below. Okay, this is nothing but effect of gyroscopic couple on the nervous system in the following three cases. Okay, मीन्स जो गायरोस्कोपिक कपल ऑन नर्वस सिस्टम के ऊपर जो भी एक्ट हो रहे वन थिंग कीप इन योर माइंड. सपोज एक अगर से तुम्हारा शिप है अगर से रिवर से कोई शिप तुम्हारे सी के अंदर जब एंट्री करा दैट टाइम दिस इज द इफेक्ट इज डिफरेंट दिस इज नॉट अ पिचिंग इफेक्ट. ओके, तो उसमें कुछ तो भी तुम्हारा अगर से जहाज अगर से शिप तुम्हारा रिवर से जब सी के अंदर एंट्री कर रहा है दैट टाइम दिस आर द इफेक्ट वी कैन नॉट कंसीडर हियर मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी वो इफेक्ट आते रहते हैं बरोबर है. वो पिचिंग इफेक्ट ऊपर नीचे जो भी पीछे दिस आल्सो भी कम अंडर दिस पिचिंग इफेक्ट. ओके, बट effect of a gyroscopic couple on the nervous system is nothing but steering, pitching and rolling effect take place. Okay, see here. Okay, this is nothing but top view and front view of this ship. Okay, port the longitudinal axis is provided. The front axis is nothing but we call it in the rear end stern and below is nothing but bow ends and axis provided ports transverse axis and below is nothing but your
bearings, propellers. Okay, these are the parameter. ये सभी चीजें अगर से चीजें होती रहेंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रोटेटिंग मासेस, उसके ऊपर जो भी पिचिंग इफेक्ट आते रहते, पिचिंग इफेक्ट टेक प्लेस यार, पिचिंग इफेक्ट होते हैं, रोलिंग इफेक्ट होते हैं, स्टीयरिंग इफेक्ट होते हैं, दिस आल बी फिनोमेना टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मासेस एंड रोटेटिंग ऑफ द प्रोपेलर. ओके, तो ये नर्वस शिप के अंदर दिस आल द पिचिंग इफेक्ट विल बी टेक प्लेस. ओके, दिस आल द रिप्रेजेंट बाय द, यू गेट द गुड आइडिया अबाउट दिस नर्वस शिप ड्यूरिंग द स्टीयरिंग के होते समय क्या इफेक्ट होते हैं, डेफिनेटली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, प्रोपेलर सब. ओके, व्हेन वी देखो लेफ्ट टर्न वहां पे ईच एंड एवरी एरो इज गिवन, बरोबर है, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपलिंग एंड एक्टिव गायरोस्कोपिक कपलिंग व्हेन वी टेकिंग द टर्न. ओके, suppose in the diagram is showing nervous shift taking the left turn. Okay, that time what happens, definitely then when taking the left turn your rotor is rotating in the anti-clockwise direction. When your rotor is rotating anti-clockwise direction, that time your active gyroscopic acting. Okay, but when the taking in the left direction, then reactive couple म्हणजे जिस डायरेक्शन की तरफ तुम टर्न ले रहे हो उस डायरेक्शन में तुम्हारे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल्स याप्ट होते हैं. दिस थिंग यूर कीप योर माइंड ऑलवेज. ओके, कि गायरोस्कोपिक कपल जो एक्टिव फोर्स है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा रोटर अगर से रोटेट होता होगा उस डायरेक्शन में ओनली क्या होते रहेगा, एक्टिव फोर्स, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल एक्ट होते हैं, लेकिन उसके अपोजिट में रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल एक्ट होते हैं. इन अदर वी कैन से when taking the left turn में रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल एक्ट होते रहते हैं. ओके, जो एग्जांपल मैंने बस के ऊपर अगर से तुम जाते हो तो when taking the turn in the left direction, ड्राइवर ने अगर से लेफ्ट टर्न लिया तो अपन भी लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन अपन क्या होते हैं दैट टाइम अवर जो रिएक्शन गायरोस्कोपिक अपने को जो रिएक्शन आती है वो टोटली अपोजिट आती है, बराबर है. अगर तुम फोर व्हीलर में जा रहे हो, अगर तुमने लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया तो दैट टाइम अपन भी ऑटोमेटिकली लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन दैट टाइम व्हाट हैपन, वी आर गोइंग टू द अपोजिट डायरेक्शन. दिस ऑल these things cover here in the shift steerings. Okay, this is the gyroscopic effect take place. Okay, with the help of the calculation. देखो यहाँ पे देखो पिचिंग इफेक्ट में इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑन ए नर्वस शिप ड्यूरिंग द पिचिंग के वजह से होने की वजह से व्हाट थिंग्स टेक प्लेस. देखो पिचिंग के इफेक्ट कैसे आ रहे, पिचिंग इज द मोमेंट ऑफ अ कंप्लीट शिप इन द अप एंड डाउन जो होता है अप एंड डाउन, दिस थिंग्स पिचिंग इफेक्ट आल्सो विल टेक प्लेस. कम टू द जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देने की कोशिश किया, अगर से तुम्हारा शिप रिवर से अगर से सी के अंदर जा रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है, that time some pitching effect also will take place, but this pitching effect take place due to the presence of different density of the water. Okay, this दो डेंसिटी ऑफ वाटर के डेंसिटी की वजह से होते रहता है, लेकिन ये जो पिचिंग इफेक्ट हो रहा है तुम्हारा ऑलरेडी जो, बट दिस पिचिंग इफेक्ट टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्ट up and down movement take place due to the what rotation of shaft and when we taking this movement. Okay, see here diagram number A, पिचिंग वो तुमको पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है, जब रोटेट हो रहा है दिस थीटा इंक्लिनेशन टेक प्लेस, इट मे बी अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, पिचिंग अपवर्ड एज वेल एज पिचिंग डाउनवर्ड. ओके, दिस आर द बेसिक आइडिया, बस पिचिंग पिचवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन टोटली डिपेंड टेक प्लेस विच डायरेक्शन आर यू टेकिंग द टर्न. सेम थिंग दिस इज द पैरामीटर वी रिक्वायर बेटा, जो अपन ने इसके पहले गायरोस्कोपिक इफेक्ट में जो देखे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मोमेंटम, जो मास मोमेंट रेडियस वगैरह जो भी अपने को चीजें चाहिए थी, दिस आल्सो भी कॉमन फिनोमेना इन द सिर्फ ये फोर व्हीलर के अंदर जो दिस आर द एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूस व्हाइल वी आर टेकिंग द टर्न. यहाँ पे जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट तो आ रहा फोर व्हीलर के ऊपर भी. सी यार देखो वहां पे इनर व्हील, ड्राइव व्हील, आउटर व्हील, ड्राइव व्हील में टेकिंग द लेफ्ट टर्न, बराबर है. जो फ्रंट के टायर है थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो जाएंगे, डेफिनेटली दैट टाइम डेफिनेटली दे आर क्रिएटिंग द इनर डेड सेंटर एंड आउटर डेड सेंटर. ओके, दैट टाइम दिस आर द फिनोमेना मींस या इसके मुताबिक वो पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर किए रहते हैं. व्हाट में भी गियर रेशियो कितना था, लिनियर वेलोसिटी कितनी थी, और एक मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ऑल दिस पैरामीटर वी आर कंसीडरिंग हियर. ओके, ये सभी कैलकुलेशन करके ईच एंड एवरी इफेक्ट अपन वहां पे कैलकुलेशन करते हैं. ओके, एंड वी आर फाइंडिंग गायरोस्कोपिक इफेक्ट और गायरोस्कोपिक कपल कैसा वहां पे डेवलप होता है. ओके, इन लास्ट अगर से पॉइंट में देखोगे तो गायरोस्कोपिक
effect on the couple on a four wheeler में last points here. तो ये all these given mathematical formula. Okay, these are the things also given in the any numerical. Okay, no problem. In the here one thing is with help of the red light, the positive sign is used when the wheels and rotating part engine are rotating the सेम डायरेक्शन. ओके, पॉजिटिव साइन जो अपन इसके पहले मैंने शिप के अंदर आपको जो बताया था, मीन्स यू आर जो रोटेटिंग ऑफ जो भी रोटर जो रोटेट डायरेक्शन में होगा उस समय तुम्हारा एक्टिव पार्ट मीन्स पॉजिटिव मुझे जो ऑलरेडी इसके पहले अपन ने देखे थे ना, यहाँ पे जो कहाँ पे देखा था, जस्ट मिनट वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट मिनट, जो इसके अंदर अपन ने जो देखे थे, जस्ट मिनट देखो यहाँ पे जो अपन ने इसके पहले देखे थे बराबर है, शिफ्ट ड्यूरिंग द स्टीयरिंग, जब तुम स्टीयरिंग करते हो जो एक्टिव ऑन अनएक्टिव उसको ही सॉरी व्हेन वी टेकिंग द लेफ्ट टर्न जो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है, reactive gyroscopic couple and left direction they are when we taking the left turn they are providing same direction but rotor की clockwise direction में है, तो that time your gyroscopic couple is nothing but your gyroscopic active gyroscopic at the same direction of a rotor, इसको अपन positive बोलेंगे और this nothing but उसको अपन negative बोलेंगे. These all the parameter cover in this gyroscopic. Okay, just a minute, this is a cover here, उसको ही अपन ने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से यहाँ पे इन केस ऑफ फोर व्हीलर उसको अपन ने लिए. ओके, आफ्टर दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इफेक्ट व्हाट इफेक्ट टेक प्लेस, उसके वो मुताबिक वो गायरोस्कोपिक इफेक्ट के होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट होंगे. डेफिनेटली अगर से वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, वाइब्रेशन अगर से तुम्हारे फोर व्हीलर टू व्हीलर और एरोप्लेन और शिप में इस इन व्हीकल्स में अगर से तुम्हारा वाइब्रेशन है, डेफिनेटली उसका इफेक्ट तुम्हारे उस पर्टिकुलर व्हीकल में होगा, उस पर्टिकुलर मशीनरी पार्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट्स के ऊपर होगा. डेफिनेटली दैट इफेक्ट टेक प्लेस ऑन योर एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन और पर्टिकुलर व्हीकल. सो इन एनी हाउ कंडीशन उसको एनी हाउ कंडीशन में विद हेल्प ऑफ द बैलेंसिंग्स, इट में बी एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, उसको अपन एनी हाउ कंडीशन में मिनिमाइज करने हैं. फर्दर पर्पस वाइब्रेशन इज कॉन्वेना वाइब्रेशन के अगर से वाइब्रेशन को अगर से तुमको मिनिमाइज करना है तो फर्दर पर्पस ऑफ फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन प्रोवाइडेड फोर्स वाइब्रेशन रहता है, डैम्पिंग वाइब्रेशन. दिस आर द क्लासिफिकेशन, these are the different type of vibrations take place in the vibration in the मोशन कंडीशन में इसी प्रकार के वाइब्रेशंस गाड़ी में आते रहते हैं. डेफिनेटली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इस यही अपने को एनी कंडीशन में बैलेंस करना है और मिनिमाइज करना है ताकि हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो सके. ओके, दिस नथिंग बट दिस डायग्राम इज शोइंग द टाइप ऑफ फ्री, इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल फ्री वाइब्रेशन है ना, ट्रांसवर्सल वाइब्रेशन है ना, टॉर्सनल वाइब्रेशन. बराबर है. तो पर्टिकुलर वाइब्रेशन देखो लॉन्गिट्यूडनल में वन पर्टिकुलर एक्सिस में ऑल द जो मासेस है वन एक्सिस में एक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्सल पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारे इनिशियल पोजीशन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योर इनिशियल पोजीशन में क्या हो रहा है, वो इनिशियल पोजीशन थोड़ा सा वाइब्रेट होते रहते हैं. डेफिनेटली दिस आर द इफेक्ट टेक प्लेस. जैसे ये जो इफेक्ट है डेफिनेटली तुम्हारे ईच एंड एवरी कंपोनेंट के ऊपर आएंगे, इसको ये नियम कंडीशन को मिनिमाइज करना है. एंड टॉर्सन ड्यू टू डेफिनेटली दिस इज द टॉर्सन वाइब्रेशन, इट इज द वेरी डेंजरस वाइब्रेशन. सम टाइम योर सॉफ्ट इज चांसेस ऑफ तुम्हारा चांस सॉफ्ट ब्रेक होने के चांसेस इसमें काफी ज्यादा रहते हैं, उसको अपन ये नियम कंडीशन अपन मिनिमाइज करते रहते हैं. ओके, विद हेल्प ऑफ द डैम्पिंग इफेक्ट वगैरह वहां पे लगा के अगर से व्हीकल्स तुम्हारी मशीनरी वगैरह वहां पे जो वाइब्रेशन वगैरह मिनिमाइज करने के लिए डैम्पिंग इफेक्ट वगैरह वहां पे लगा रहता है. इज नथिंग बट वायरलिंग ऑफ शाफ्ट, जो अपन इसके पहले डिस्क के अंदर जब अपन पढ़े हैं फिर भी अपन डेफिनेशन देख लेते. इन एक्चुअल प्रैक्टिस द रोटेटिंग ऑफ carries different mounting and accessories in the form of gear, pulleys, etc. Okay, when the gear or pulley is put on the shaft, the center of gravity of pulley or gears does not coincide with the center line and bearing with the axis of a shaft when the shaft is stationary. This is nothing but a critical critical speed this also phenomena already cover in the डिस्क स्टार्टिंग में जो भी इसेंट्रिसिटी जो जो यहाँ पे पुनः तुमको क्लियर आइडिया प्रोवाइड की गई है. सपोज अगर डिस्क एक स्टेशनरी मेंबर के ऊपर रोटेट होता है, डेफिनेटली दिस एक्सिस एंड योर डिस्क आर कोइंसाइड इन द वन एक्सिस, बट हियर व्हाट हैपेंस डायग्राम नंबर बी में क्या हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम मासेस के मुताबिक सब हाई स्पीड में रोटेट होने की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम मासेस, उसमें मासेस होने की वजह से सब वो एक एक्सिस में रोटेट होते हुए दे आर टेकिंग द सम डिस्प्ले हो जाती है. ओके ओके, दिस नथिंग बट अ क्रिटिकल स्पीड. ओके, दिस ऑल द पैरामीटर वी आर कवर हियर.
Any doubt? Hello? Hello sir, आवाज येत आहे का? Yes, sir. It is audible. हाँ audible ना? Any queries sir? Just ask it. If any one of you are having any query, they can ask. Okay, sir. I think students have already understood the topic very lightly, and I'm sure that they will score good marks in upcoming GATE examination. I'm thankful for your kind presence for today's guest lecture, sir. Okay. Thank you very much sir. Thank you very much sir. Today's Today I think. topic we covered for the AICT sponsored GATE scheme under Prerna scheme. Yes sir. Okay. Okay, thank you sir. Thank you Thank sir. you. Okay sir. Okay, thank you, sir.